Hello viewers, my name is Brunoy Samson and I welcome you all to Samson's Academy. Today we are going to learn a very interesting topic called as valency. In this lecture, we are going to understand how to find the valency of an element. We are going to understand how to write the molecular formula using two or more atoms. Let us begin with this amazing session. So, मेरे सभी दर्शकों के लिए आज हम लेते हैं बहुत ही सिंपल सा एक एलिमेंट जिसे कहते हैं लिथियम. Now, lithium is the third element in the periodic table, जिसका एटॉमिक नंबर है 3. The symbol of lithium is Li. अब एटॉमिक नंबर 3 का मतलब क्या होता है? It means कि lithium has 3 protons in the nucleus. As you know, nucleus is the center of the atom, the core of the atom, and it has 3 electrons that revolve around the nucleus. Protons are positively charged ions and electrons are negatively charged ions. Now, my dear children, when we talk about lithium, if I were to draw the electronic configuration of this, in the center of the nucleus we'll have 3 protons, yes, with filled neutrons. The first orbit, called as the s orbit, will always have exactly 2 electrons or less than 2 electrons. In this case, lithium has 3, so in the first we'll have 2 electrons, and in the next shell is an octet. It needs 8, but since lithium has total 3, out of which we have used 2, we will use 1 here. Now, since there is only 1 electron in the outermost shell, जो सबसे बाहर वाला शेल है, उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, and that's why the valency of this lithium is 1. Next, let us take a non-metal. Let's take chlorine. Now, chlorine, the 17th element in the periodic table that has the atomic number as 17. Again, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है. The molecular symbol of chlorine is Cl, where C is capital and L is small. अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, it will have 17 protons. The first shell, जैसे मैंने आपको कहा, जो पहला शेल है जिसे हम S शेल कहते हैं, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. So we have 1 and 2. आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. The second shell, octave. अब 17 में से अगर 2 चले गए 15 बचे. जो सबसे जो अभी नेक्स्ट वाला शेल है उसमें 8. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ये हो गया 8. 15 में से 8 गए, बचे 7 यहां पे. Now, my dear children, the outermost electron is not complete. The outermost shell is not complete. क्योंकि complete होने के लिए 8 या 2 लगते हैं. अगर आप देखोगे कि इसके सबसे अंदर वाले S शेल में 2 थे. नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में यू हैव 8. बिकॉज ये दोनों कंप्लीट है, इन्हें हम कहेंगे इनर्ट शेल्स. इनर्ट क्योंकि ये कंप्लीटेड है. और जो बाहर वाला शेल है उसे हम कहेंगे वैलेंसी या वैलेंस. अब बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? वेरी गुड,
बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से we will be calling this as the valence of chlorine is 7. हमने देखा वैलेंसी क्या होता है, हमने अब देखा कि क्लोरीन और लिथियम की वैलेंसी क्या है. अब बच्चे लोग याद रखना, एक कंप्लीट शेल होने के लिए 8 की जरूरत होती है और 8 का आधा क्या होता है? The half of 8 is 4. जो एटम्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 से कम होता है, मतलब हाइड्रोजन के सबसे बाहर वाले शेल में 1 होता है, बेरिलियम के बाहर वाले शेल में 2 होता है, बोरॉन के बाहर वाले शेल में या सबसे आउटर मोस्ट शेल में 3 होता है. जो एटम्स के पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और उन्हें कहते हैं मेटल्स. जो इलेक्ट्रॉन जो एटम्स जिनके बाहर वाले शेल में 4 से ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन हैज 6 और अभी हमने देखा क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं. अब बच्चे लोग यू ऑल्सो नो, अगर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बेरिलियम. बेरिलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. पूरा कंप्लीट करने के लिए 8 की जरूरत होती है. व्हाट डू यू थिंक इज इजी? 6 लेना या 2 देना? इट्स वेरी इजी टू गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स rather than taking 6. Whereas if you come to oxygen has total 6 electrons in the outermost shell, जिसकी वैलेंसी 6 है. That means it's very easy to take 2 electrons rather than giving 6. And that's why when we talk about valency, we also should know something called as electropositive. जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है क्योंकि प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है वो कहीं नहीं जा रहा, बस इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं. तो इसीलिए जो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं. जो एटम्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं. अब अगर तुम यहां पे देखोगे तो लिथियम का दिया हुआ 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के क्लोरीन के पास चला जाता है, मतलब दे फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड. So, how will I write the molecular formula now? Lithium, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, उसकी वैलेंसी है 1. क्लोरीन, जिसको 1 चाहिए. अब तुम बोलोगे इसकी वैलेंसी 7 होगी. नहीं, वो 7 नहीं है. क्यों? मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा कि 4 से अगर कम है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए हम लिखेंगे +1. अब क्लोरीन को 7 है, मतलब उसको 1 चाहिए. 4 से ज्यादा हो गए तो हम वो नहीं लिखेंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स है, हम वो लिखेंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. मतलब क्लोरीन को 7 क्लोरीन को हम 7 नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे -1 क्योंकि उसको 1 चाहिए. राइट? Now how will I write the molecular formula? I know lithium and chloride will make the molecular formula as LiCl. Lithium का +1 we will write it next to chlorine and chlorine का 1 we will write it next to lithium. अब 1 नहीं भी लिखा तो is completely fine. That's why the molecular formula is lithium chloride. लेकिन what if instead of chlorine, I take oxygen. Let's take oxygen and keep it lithium as it is. Let's take oxygen. Oxygen. The atomic number of oxygen is 8. Let's try to make the electronic configuration. 8 मतलब 8 protons, 8 electrons. So there are 8 protons in the nucleus. The first shell has 2 and the last shell has 6. Now oxygen
has 6 इलेक्ट्रॉन्स की आउटर मोस्ट शेल, मतलब उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरा ऑक्टेट बनाने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखूंगा मैं? क्रॉस, इट विल बी Li2, ये 2 Li के बाजू में, एंड O1। 1 नहीं भी लिखा तो कंप्लीटली फाइन, यू गेट द आंसर एज lithium oxide or Li2O. With this, we complete today's chapter. Please do not forget to like, subscribe, and share this video.